First of all, Assalamu alaikum. My name is Hafiz Mohsin Rasool and ID number is F2018070025. Our course title is Numerical Analysis and course code is MA223. Section M submitted to Khabar Nadeem. Our project name is Newton-Raphson method and I am the student of BS Math 5th semester and I study in University of UMT. So first of all, we will discuss about Newton-Raphson method. Newton-Raphson method. First of all, we will discuss introduction. The Newton-Raphson method technique converges equally fast for large as well as small system. Most widely used for solving simultaneously non-linear algebraic equation. It is a successive approximation procedure based on initial estimate of the unknown and the use of Taylor series expansion. It's Newton-Raphson method in uses to the Taylor series algebraic equation techniques, some real life application. As we know from school days and skills, we satisfied about the solution of equation of quadratic cubic formula polynomial equation like x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac under root over 2a. ABC are the coefficient of equation, but nowadays it is very difficult to its uses to remember formula for higher degree polynomial equation. Hence, to remove the difficulties, there are four numerical to be discussed in this following are as follows. So first of all, we will discuss about the definition of Newton-Raphson method. Newton-Raphson method, it is a Newton method. It is a way to quickly find a good approximation of root for a real value function like fx is equal to 0. The mathematical formula of Newton-Raphson method is xn plus 1 is equal to xn minus fxn divided by f derivative of x power n. This is called Newton-Raphson method. And now we will discuss about the history of Newton-Raphson method. Newton-Raphson method is derived from Isaac Newton. Description of special cases of the method is written as 1669, published in 1711 by Ritten Jones. And the next one, discovered by the Isaac Newton and published of his method of Fluxionius 1736. Joseph Raphson described the method in Nernst equation in 1690. Method of Fluxion was written in earlier in 1671. Today it is used in wide variety of subjects including computer vision, artificial intelligence. Francis White 1460 developed by a method of approximate roots of polynomial was published by the Joseph Raphson in 1960. How do we solve the Newton-Raphson method? Newton-Raphson method has solved to be 5 steps. Like first step is find point AB such that AB and find A minus FB greater than 0. Step 2, take the interval AB and find the next value of x naught is equal to A plus B divided by 2. And third step is find fx naught और उसका derivative. So formula it's give us x1 is equal to x0 minus f0 or divided by f derivative x power 0. And step 4, if fx1 is equal to 0, then u1 is an exact root, else x0 is equal to x1. Step 5 repeats step 2 or step 4 until fxi is equal to 0 or fxi accuracy. So example, how can we solve Newton-Raphson method? So हमारे पास क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स वन माइनस वन. ये इक्वेशन है, इसको हमने Newton-Raphson मेथड के ज़रिए सॉल्व करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट करेंगे fx इज इक्वल टू दिस वन, fx इज इक्वल टू, और इसका डेरिवेटिव जब लिया हमने तो हमारे पास आ गया 3x का स्केयर. fx के डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास आ गया 3x का स्केयर माइनस 1. हेयर x0 1 2 fx इज इक्वल टू -1 -1 और 5.
f1 इज इक्वल टू -1 ग्रेटर देन 0, f2 -5 और लेस देन 0, रूट लाई बिटवीन 1 और 2 के दरमियान। सो एक्स नोट इज इक्वल टू 1 + 2/2 इज इक्वल टू 1.5 एंड द नेक्स्ट वन इज फर्स्ट आइटरेशन इज f(x) इज इक्वल टू 0, f 1.5 0.87। सो इसका अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास इसका आंसर ये आता है कैलकुलेशन करके। सो उसको हमने फार्मूले में पुट किया जो कि न्यूटन-रॉफ्सन मेथड का था, तो हमारे पास x1 की वैल्यू निकला। इससे जब हमने सेकंड आइटरेशन की तो f(x1) की जगह पे हमने उसकी वैल्यू लगा दी क्वेश्चन में, तो हमारे पास ये x1 क्या है। अब हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास ये सोल्यूशन आया, तो उसको हमने न्यूटन-रॉफ्सन मेथड में अप्लाई किया तो सेक्स की सेकंड आइटरेशन ये हुई। इसी तरह हमने इसकी थर्ड आइटरेशन की, उसको फार्मूले में अप्लाई किया तो इसकी आइटरेशन ये आई। फोर्थ आइटरेशन करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल आंसर x4 का ये आया। तो अप्रोक्सीमेशन रूट ऑफ हमारे पास ये बनते हैं, 4 आइटरेशन हुई है हमारे पास। इसकी एक्स नोट की वैल्यू हमारे पास ये आती गई, एफ एक्स नोट की हमारे पास ये आती गई, और उसका डेरिवेटिव लिया हमारे पास ये वैल्यू आती गई, x1 की वैल्यू ये आती गई। सो 2 और 4 जो थी और जो थर्ड थी, ठीक है, वो हमारे पास आइटरेशन एक जैसी ही है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये न्यूटन-रॉफ्सन मेथड हमारे पास क्या कामयाब हो गया। इसी तरह इसका सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, उसको भी हमने f(x) इक्वल टू 12 सबसे पहले हमने उसका लेट किया, फिर हमने उसका अंडर रूट ख़त्म किया, तो ये प्लस में था, इधर आकर माइनस हो गया, तो इसका हमने डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास ये आंसर आया, f(x) इक्वल टू 2x हो गया, ठीक है। उसके बाद जब हमने इसका टेबल बनाया तो हमारे पास ये चीज़ आ गई 0 1 2 3 4 -12 -11 -8 -3 और 4। सो f3 लाइज कर रहे हैं, रूट लाई कर रहे हैं 3 और 4 में, तो x नोट की वैल्यू हमारे पास ये चीज़ आ गई। इसकी फर्स्ट आइटरेशन की, उसका डेरिवेटिव लिया, उसको न्यूटन-रॉफ्सन मेथड में पुट किया तो x1 आ गया। इसी तरह x1 की हमने वैल्यू जब पुट की तो हमारे पास उसका फाइनल आंसर ये आया, उसका डेरिवेटिव लिया, फिर उसको फार्मूले में पुट किया तो x2 की वैल्यू आ गई। देन हमारे पास उसकी थर्ड आइटरेशन की तो हमारे पास ये देखें f(x) की 2, और जब हमने उसकी वैल्यू लगाई तो हमारे पास उसका आंसर 0 आया, तो उसका फिर हम इस चीज़ का हमने डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास ये आया। इन दोनों को हमने, इसकी और इसकी वैल्यू हमने लगाई फार्मूले में, तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर ये आ गया। उसके बाद इसकी अप्रोक्सीमेशन की तो हमारे पास ये चीज़ बनी। उसके बाद हमने जब अब इसका टेबल बनाया x नोट, f(x) नोट और f(x) के डेरिवेटिव x1 और अपडेट, तो हमारे पास ये सारी वैल्यू 2 और 3 जो नंबर थे उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई, सेम आई। अब हमारे पास कुछ इसके यूजेस हैं जो रियल लाइफ में भी यूज़ होते हैं, जो मैथ में भी यूज़ करते हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस में भी यूज़ करते हैं। लाइक उसके लिए आइडिया ऑफ द कंटिन्यूस डिफरेंशियल फंक्शन होता है, यूज स्ट्रेट लाइन में टेंजर टू फाइंड कम्प्लेक्स रूट बाय पोलिनोमियल, इसके न्यूटन-रॉफ्सन मेथड के यूजेस में आ जाता है। उसके बाद हमारे पास इसके आ जाते हैं फ्यूचर्स। तो सबसे पहले फ्यूचर्स में क्या आ जाता है हमारे पास, एफिशिएंसी ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल कन्वर्ट्स क्विकली, कैलकुलेशन इन्वर्जन ऑफ कंप्यूटेशन डिफिकल्ट फॉर लार्ज मॉलिक्यूल, और ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस इसके 2 होते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस में आ जाती है फेल टू अप्रोक्सीमेट क्लोज टू रूट ऑफ x की पावर 0, द रीज़न इज दैट डिफिकल्ट टू बाय द वैल्यू द नंबर विद द लार्ज एब्सोल्यूट वैल्यू। इसकी एप्लीकेशन में आ जाता है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। सो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में हमारे पास आते थे कॉस्ट रेशियो आ जाती है, उसमें हम सिंगल एज वेल एज द मल्टी सोर्स ब्रांच नेटवर्क इंक्लूडेड ब्रांच आ जाती है। उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन क्राइटेरिया आ जाता है। तो एफिशिएंसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फॉर द ऑप्टिकल डिज़ाइन ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम आर आल्सो अवेलेबल ऑफ एनालिसिस ऑफ वाटर डेवलपमेंट सिस्टम। सो ऑप्टिमाइजेशन क्राइटेरिया में ये होता है कि कॉस्ट डिज़ाइन की जो लॉस रेशियो होती है ना, उसको हम नोट्स के अंदर उसके सोर्स मोड को हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्राइटेरिया नोट्स में HCL यूज़ होता है। उसके बाद जेस की इक्वेशन बनती है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन के लिए हमारे पास ये चीज़ आ जाती है, इसके बेस्ड ऑन द मेजर ऑफ द प्रिमिटिविटी जनरेट आइटरेटिव स्कीम विद द इट इज एक्सप्लेन विद द algorithm flowchart. The second method in many cases become more practical than the Newton-Raphson method as derivative to need to be calculated. So Allah Hafiz. This is our presentation.